Probably this would be a very common question which I heard so many times as a complaint, that is ki whenever I try to speak in English, my mind goes out of blank and I'm not getting understand what to speak, how to speak, and even sometimes word don't come to my mind कि भाई बोला क्या जाए, समझ में नहीं आता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल ऑल्सो कंप्लेन कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस themselves, their ideas, their feelings, emotions to others. As a result, what happens ki their confidence level goes very down. So this would be really a very problematic situation for all of us, not only just for you. I'm also including in this scenario. It also happens with me even. So in which I'm going to discuss about. But before moving further, let me apologize for the quality of this video. Just ignore this background and ignore the sound quality of this video, because right now I only just have my smartphone. I don't have any kind of external mic and other accessories. I just only have my smartphone and I'm recording the video because I wanted to connect with you. I wanted to discuss on this serious topic. That's it. So anyways, what I was trying to say, yes, in order to become a fluent English speaker, or in order to make our English communication skills better, what should we have to do first? Should we have to more focus on English grammar, or should we have to go and try to learn or chant so many other kind of hard words or vocabs? The answer is simply from my side, no. Instead of focusing more on English grammar, vocabs, you should go and try to speak as much as you can. Because why I'm saying this? Because I'm not saying that English grammar and vocabs are not important. It is required. It is necessary. Even it makes our English communication skills better, effective, efficient. But try to understand what I'm trying to say. Ki if you are a beginner and if you hesitate while opening your mouth in English in front of your friend circles, in front of your relatives, in front of the outside of the world, so you must have to speak as much as you can with yourself. And how is it possible? Just go and close all the doors and all the windows of your room. We all knows the mirror technique. सबने सुना है कि मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना है, but we don't use it. But trust me, it is a very effective technique. वहां से आपको अपने gestures, postures, सारी चीजें, communication, सारी चीजें देखने को मिलता है. And उससे भी ज्यादा जो एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव मुझे टेक्निक लगती है, that is कि आप अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड करो. You can also record your own video and try to observe from where you are lacking, from where you are struggling, from where you can improve it more. है ना? तो वहां पर से आप अपना वीडियो खुद देख करके improve करोगे, अपनी communication skills को better करोगे. And you can also take the help of simply Google Translator. है ना? So speaking is the only medicine. Speak and speak. This is what I was trying to say कि अगर आपको बोलना है, if you want to be a master, if you want to be a fluent in English, है ना, so speaking is the best medicine. इससे ज्यादा पढ़ करके कुछ नहीं है. अगर आप बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बोलने से ही स्टार्ट करना होगा. देन ग्रेजुअली यू कैन सी कहाँ आपको स्ट्रगल हो रहा है. देन आप हार्ड वर्ड्स पे जाओ, अपने ग्रामर्स को सही करो. सबसे पहले अगर आपको बिगिनर हो, एकदम नहीं है, बोलने में हेजिटेशन होता है, तो जस्ट गो एंड स्पीक, ट्राई टू स्पीक, दैट्स इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि देखो एक चीज होती है कि यू मस्ट हैव टू नो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग. है ना? ये चीज सबको पता होनी चाहिए. एंड इट इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड सम पीपल try to worship it, but from my side don't try to worship it, because it is just a language. ठीक है, बहुत लोग जैसे बोलते हैं वो तो इंग्लिश में बोल लेता है, तो क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. ठीक है, कोई एक्सेल में मास्टर होता है, कोई अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स किसी की अच्छी होती, कोई अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है. अपना अपना सबका क्राइटेरिया होता है ना? तो अगर कोई इंग्लिश अच्छी बोल लेता है तो हाँ ठीक है, अगर आप भी उस पर वर्क करोगे तो यू कैन ऑल्सो स्पीक. है ना? यू कैन ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग. एंड आई एम डैम श्योर कि वंस यू विल गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग, you will definitely feel some kind of uncomfortable zone.
जब आप जाओगे ना, आप अपने मुंह से 2 4 6 शब्द बोलोगे तो आपको कोई ना कोई बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल जोन को फेस करना पड़ेगा। इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। हमको भी, मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है कि अरे कैसे समझाना पड़ता है। जितना अच्छा हिंदी में सब कोई बात कर लेता है उतना अच्छा इंग्लिश में नहीं कर पाता है, सीधी सी बात है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि just think कि if you will not come out from your comfort zone, will you be able to learn, will you be able to start learning something new? नहीं, है ना। कोई भी चीज को तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसकी तरफ फोकस ना करो। इफ यू वांट टू गेट समथिंग, डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस सम काइंड ऑफ पेन, है ना। देयर इज अ वेरी फेमस कोट, नो पेन नो गेन, है ना। इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन बॉडी, जस्ट टेक अ एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी देन डेफिनेटली यू विल हैव टू सम काइंड ऑफ पेन, है ना। जाओगे जिम में, थोड़ा सा एक तरीके का पेन होगा। तो इंग्लिश भी अगर सीखना है तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, और जब मुंह से बोलोगे तो एक तरीके की अनकंफर्टेबल, वहां आपको कंफर्ट जोन नहीं फील होगा, अनकंफर्टेबल जोन फील होगा। बट यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट इन अ डे। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर। अब तो जाने कितने सारे एप्स आ गए जहां पर से आप अपनी गलतियों को खुद ही देख सकते हो, है ना, खुद ही सही कर सकते हो अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को। सो टुडे आई हैव अ वेरी स्मॉल होमवर्क फॉर यू, एंड डोंट ट्राई टू पोस्टपोन इट, don't say to you कि I'll do it later, because no one is going to be motivate you over and over again, है ना। आपको बार बार कोई मोटिवेट नहीं करेगा। जस्ट गो एंड फाइंड योर टाइम, जस्ट गो एंड 10 मिनट 20 मिनट एटलीस्ट निकालो, अपना वीडियो खुद निकाल करके, अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड करके देखो, जैसे सेल्फी मोड पे, जैसे मेरा ये है। आपको एकदम ओरिजिनल मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि कितनी जगह मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे भी स्ट्रगल हो रहा है, अटक रहा हूं मैं कहाँ कहाँ बोलने पर, है ना। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि आप भी देखो, समझो कि फ्रॉम वेयर आई एम स्ट्रगलिंग। इसी तरीके से आप भी अपने मन से स्टार्ट करो, 2 4 6 शब्द बोलो एटलीस्ट, है ना। सो डोंट ट्राई टू पोस्टपोन इट, और इसको ये मत बोलो कि मैं बाद में कर लूंगा, बिकॉज सभी लोग जाते हैं 8 घंटे 10 घंटे, सब लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, दूसरों का काम करते हैं, कंपनी में जाते हैं, बट वी डोंट गेट सम टाइम अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकालते, है ना। तो गो एंड try to speak, है ना। just go and close all the doors, all the window, and start speaking with yourself, start with your introduction, start with your to know about yourself। अपने बारे में ही बोलो, अपने बारे में 10 लाइनें बोलो, and you have to do it regularly basis कि 10 मिनट 20 मिनट अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके खुद देखनी है। मिरर टेक्निक से अच्छा है कि आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके खुद देखो, तो आपको ज्यादा अच्छे से मिस्टेक्स अपनी पता चलेगी, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप कि आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी और थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिला होगा। बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जाओ और इस तरीके की चीजों को रोज करो। 10 मिनट का एटलीस्ट टाइम निकालना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होता है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, जाओ और जाकर के करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ इट रियली वर्क्स फॉर यू, ठीक है। मुझे खुशी होगी, एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन एन अनदर सेशन विद अनदर काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अगर इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी पसंद आया हो, इससे अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हो, तो प्लीज एटलीस्ट इसको लाइक करना, थोड़ा सा बताना कि आपको कैसा लगा, देन वी विल स्टार्ट मेकिंग सीरीज ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें जिसको मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है, बट आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, है ना। उसके लिए तो थोड़ा सा अपनी तरफ से बताना। अगर आप अपनी तरफ से, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन फीडबैक भी मिलता है तो फिर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो जितने भी लोग देखना है इसको, प्लीज एटलीस्ट मुझे कॉमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, एंड I'll meet you with very soon in another session. Till then, take care. Thank you and bye.